الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ اور قائم کرو تم لوگ نماز اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ یہ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کو امناک عذاب کی جو ہے وہ بشارت دے دیجئے۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی گردن پر بکری لادے ہوئے نہ لائے، یعنی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، جو چلاتی ہو، پھر وہ شخص کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کیجئے، پس میں کہوں میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو خدا کا حکم تجھ کو پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح اونٹ کے بارے میں فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور جس طرح بکری گائے اونٹ کی زکوٰۃ نہ دینے کا یہ نتیجہ ہوگا، اسی طرح دیگر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے کا حال ہونا کچھ بعید نہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارے مال اور تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے، یعنی خرید لیا ہے، تاکہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازے۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں فرما دے۔ یہ مال، یہ دولت جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اسی لیے تو قیامت کے دن اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک ہر مال والے سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اور خدا نے تجھ کو جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، یعنی اس جہان کو بھی آباد کرنے کی کوشش کر، اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کیا کر۔ یعنی اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، اچھی جاب ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زمین ہے، فصل ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مرتبے ہیں اور منزلت ہے، ان کا بھی جو ہے تم حق ادا کیا کرو۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے تو حد کر دی ہے، جسے کہتا ہے تو ظالم یہ میری ہے یہ میری ہے، یہ جس کی ہے اسی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جس کی ہے اسی کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اس نشریاتی ویڈیو میں مختصراً زکوٰۃ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج اس کی اہمیت بہت ہے۔ ہم اس فریضہ زکوٰۃ میں بہت غفلت برتتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اقسام کی طرف۔ ہر آزاد آدمی مسلمان جو صاحب نصاب ہے اور اس مال و متاع پر سال گزر گیا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔
ज़कात सोने, चांदी, रुपए, करंसी, माल मवेशी, असबाब तिजारत, ग्रोसरियाँ, जनरल स्टोर, हौजरी, बिल्डिंग मटीरियल, कपड़े, रेस्टोरेंट और ज़मीन की पैदावार जो शरीयत की रोशनी में निसाब पर पूरी उतरती हो, यानी ये तमाम असबाब तिजारत जो इंसान जो है वो जिनको जो है वो रखता है कारोबार के लिए या इनसे ये चीज़ें हासिल करता है, अगर वो निसाब पर पूरे उतरें तो 2.5% ज़कात जो है वो निकालनी ज़रूरी है। सबसे पहले हम आते हैं चांदी सोने की तरफ। तो एक हदीस भी मेरे सामने आ रही है, चांदी सोने के जेवरों में भी ज़कात फ़र्ज है। हदीस में है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसके साथ उसकी लड़की भी थी। इस लड़की के दोनों हाथों में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आपने इस औरत से फरमाया, अतोतीना ज़कात हादा, क्या इन कंगनों की ज़कात तुम देती हो? इस औरत ने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि अल्लाह ताला आग के कंगन तुम्हें पहनाए? इसने कहा नहीं। आपने फरमाया, फिर इसकी ज़कात अदा किया कर। अल्लाह अकबर। फिर इसकी ज़कात दें। ज़कात की अदायगी किस तरह हो? आइए, 200 दिरहम के बराबर 52.5 तोला चांदी, यानी या 200 दिरहम के बराबर जब 52.5 तोले चांदी हो जाए तो 40वां हिस्सा ज़कात का निकालना ज़रूरी है, और ये बनता है 1 तोला 4 माशा। यानी ये आप ज़कात निकाल दें या फिर ये है कि 1 तोले 4 माशा की रकम जो है वो अदा कर दें। इसी तरह सोना जो है 1 दीनार 4.5 माशा का होता है, तो 20 दीनार के 7.5 तोले हुए, और 7.5 तोले सोना में 40वां हिस्सा ज़कात जो है वो फ़र्ज है। वो 2.25 माशे बनती है, वो ज़कात देना ज़रूरी है। 2.25 माशे सोने की कीमत दे दे या 2.25 माशा जो है वो ज़कात में दे दे। अगर चांदी 52.5 तोले से कम हो, इस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। और इसी तरह सोने में 7.5 तोले से कम में ज़कात फ़र्ज नहीं है। अपने तौर पर अगर कुछ आप देते हैं तो वो आपकी अपनी खुशी है, वरना शरीयत का मुआवजा नहीं है। जानवरों में भी ज़कात है। भेड़ है, बकरियां हैं, ऊंट हैं, गाय है, भैंस है। बकरी या भेड़ का निसाब, उस पर ज़कात कब आएगी? जब 40 बकरियां तुम्हारे पास हो जाएं तो 1 बकरी ज़कात में देना फ़र्ज है। गाय में कम अज़ कम 30 गाय हो जाएं, 30 गाय पर 1 साल का बछड़ा जो है वो देना फ़र्ज है। और ऊँटों में कम अज़ कम 5 ऊँट हो जाएं तो 5 ऊँटों पर 1 बकरी साल भर में दी जाती है। यानी कितना आसान है ये निसाब, और कितना जो है वो हदिया है आप अल्लाह की राह में देते हैं। मज़ीद मसाइल जो है वो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, राब्ता करके आप दरियाफ्त कर सकते हैं। ये तो हुई चांदी और सोने की ज़कात। अब आते हैं जो खेती बाड़ी है, फसल है, उसकी क्या ज़कात है। खेती बाड़ी में भी ज़कात है। अल्लाह ताला का फरमान है, व आतू हक़्क़हू यौम हसादे। जब तुम खेती बाड़ी को काटो, जब फसल काटने का वक्त आए तो उस पर अल्लाह का हिस्सा निकालो, यानी उशर दो। उशर के माना है 10वां हिस्सा, और मुहावरा में ज़मीन की पैदावार में से 10वां हिस्सा ज़कात में देने को उशर कहते हैं। और इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये कि ज़मीन की पैदावार कम से कम 5 वसक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा फी मा दून खमसत औसकिन सदक़तुन। बुखारी शरीफ की रिवायत है। 5 वसक से कम में उशर नहीं है, उशर नहीं होता। 1 वसक 60 सा का होता है।
5 वसक का वजन 20 मन, एक शेर 6 छटांग का हुआ। अगर सिर्फ बारिश से गल्ला की पैदावार हो तो उशुर 10वां हिस्सा यानी ज़कात फर्ज है, उशुर फर्ज है। यानी 20 मन में 2 मन उशुर है। नोट कर ले, 20 मन अगर गल्ला हो, गंदुम हो, कोई भी जिन्स हो तो 2 मन उशुर है। और अगर कुएं के पानी और हाथों वगैरह से पानी खींच कर जमीन सैराब की जाए तो निस्फ उशुर यानी 20वां हिस्सा है। यानी 20 मन में से सिर्फ 1 मन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नोट फरमा ले, फीमा सकत इस्समाउ वल उयून औ काना असरियन अल उशरा वमा सुकिया बिन नज़खी निस्फुल उश्र। अल्लाह अकबर। जिस खेती या बाग को आसमान या चश्मे का पानी सैराब करे या जमीन खुद ब खुद सैराब हो तो उसमें से 10वां हिस्सा लिया जाएगा, और जिसमें कुएं का पानी खींच कर दिया जाए तो 20वां हिस्सा जो है वो उशुर है, ज़कात है। जी, यानी फिर आप एक दफ़ा देख लें, जिस खेती की पैदावार बरसाती पानी, चश्मे, नदी, नाले, तालाब वगैरह के पानी से हो तो इसमें 10वां हिस्सा है, और जिसकी पैदावार कुएं के पानी से मेहनत या मुशक्क़त करके या रकम या मसारिफ इखराजात बर्दाश्त करके आप पानी पिलाते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें 20वां हिस्सा है। तो बड़ी तफसील से ये सारी बातें मैंने बताई हैं। अब आ गया मसला तिजारती अमवाल का, तिजारती असबाब जो है उस पर क्या ज़कात है। तो जैसा कि आपने पीछे असबाब को सुना है, तो क्या करेंगे हम, इन तमाम तिजारती अमवाल और असबाब की हम कीमत का अंदाज़ा लगाएंगे। अगर वो सोने या चांदी के निसाब के बराबर हो जाएं तो इसमें से भी 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। यानी उन पर साल गुजर जाए, वहाल अलैहिल हौल, उस पर साल गुजर जाए तो फिर उसमें जो है वो ज़कात निकालनी ज़रूरी है। मुख्तसरन मालूमात ज़कात के अहकाम के बारे में आपने सुनी। अब हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और हम ज़कात देते वक्त जो है मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ, या कोई जो नुमाइंदे हैं ज़कात वसूल करने वाले उनको हम दे दें, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, भरोसा करें। शयातीन जो हैं वो वसवसे डालते हैं और इंसान नेकी से महरूम हो जाता है, और उस फरीज़े को मुअख्खर करता रहता है। नहीं, बल्कि जब भी वक्त आ जाए और वो ज़कात का पीरियड जो है वो शुरू हो जाए तो आप कोशिश करें कि इस फरीज़े को जल्दी अदा करें। इसी तरह कुरान और हदीस जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे बच्चियां, उनको भी ना भूलें। और दीगर जो खैराती इदारे हैं या जहाँ जहाँ जो मसारिफ कुरान ने बताए हैं, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, तो इन पर भी आप नज़र डालें। और ये मदारिस जो दीनिया हैं, जहाँ बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है, और ये अंबिया कराम का एक वर्सा है। तालीम रोशनी है, इसे फैलाते चले जाइए। टीचर बनाकर या हाफिज़ कुरान तैयार करके या आलिम दीन या मुअल्लिमा बना देना, ये भी सदका जारिया है। आइए कदम बढ़ाइए, अल्लाह हमारा मददगार हो। जज़ाकुमुल्लाह।